اتنی ضرورت ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی, کیونکہ کھانا پینا نہ بھی ملا تو مر جائے گا انسان, اور ویسے بھی مرنا ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے. آج ہم ہیں تو آج تم ہو تو کل ہماری باری. میرے بھائی موت تو آنی ہے ویسے بھی, یہ جسموں کی موت آسان ہے, جسموں کی موت عام بات ہے, موت تو آنی ہے, اس سے کچھ نہیں بگڑے گا. اگر وہ مرنے والا توحید پر مرا, سنت پر مرا, تو گرچہ بھوک و پیاس سے مر گیا, لیکن کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. لیکن جس کو توحید کی غذا نہ ملی, جس کو دعوت اللہ میں توحید کی دعوت نہ ملی, سنت کی دعوت نہ ملی, شرک اور بدعات سے اور باطل راستوں سے آزاد نہ کیا گیا, اور وہ پیٹ بھر بھر کے مر گیا, آسائش کی زندگی جیتا ہوا مر گیا, خدمت خلق کی بوریاں لے کر کے, کھانے کے اناج کی کٹ لے کر کے, اور میرے بھائیوں کپڑے کا گٹھر لے کر کے, آسان چھت لے کر کے مر گیا, اور توحید و سنت سے محروم رہا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. دعوت اللہ اور خدمت خلق منہج سلف کی روشنی میں تین گوشے ہیں اصل میں الگ الگ, اور چند باتیں ان تینوں گوشوں سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے. خصوصی جو بات ہے اس موضوع سے متعلق وہ آخری گوشہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں سے متعلق سلف کا منہج کیا ہے, دعوت اللہ اور خدمت خلق. اصل میں خدمت خلق مخلوق کی خدمت, مخلوق میں چونکہ بہت سارے طبقے آتے ہیں, انسانوں کا طبقہ ہے اور ان کی خدمت کے کئی پہلو ہیں, اسی طرح مخلوق کے اندر حیوانات بھی ہیں, ایسے ہی چرند پرند بھی ہیں. ان سب کی خدمت کے حوالے سے بہت سارے نصوص, بہت سارے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا, دیکھ ریکھ کرنا. میرے بھائیوں اسی طریقے سے چرند پرند تک کو بھی کھلانے اور ان کے لیے غذا اور پانی کے انتظام کرنے وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے. لیکن بنیادی طور پر خدمت خلق کا جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سماج کے اندر جو مسلم سماج ہے یا کچھ غیر مسلم سماج بھی, ان لوگوں کی خدمت کرنا, ان کی انسانی جو بشری ضروریات ہیں ان ظاہری اور مادی ضروریات کی تکمیل کرنا خدمت خلق میں سب سے پہلے شمار کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر معیشت کی کمزوری ہے, غربت ہے, فقر ہے, محتاجگی ہے, اس اعتبار سے ان کے کھانے پینے کا انتظام, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام, اسی طریقے سے ان کے کپڑے کا انتظام, اسی طریقے سے ان کے گھر دکان مکان میں تعاون کرنا وغیرہ, اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں خصوصی طور پر مراد ہیں. ورنہ خدمت خلق میں, انسانوں کی خدمت میں, جنوں کی خدمت میں سب سے پہلا کام جو آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت توحید اور سنت کا کام آتا ہے. لیکن چونکہ عام طور پر اصطلاح کے اعتبار سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے, خدمت خلق جب کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس پہلو سے ہٹ کر جو عام طور پر بشری تقاضے, انسانی زندگی کی جو ظاہری ضروریات ہوتی ہیں اسے مراد لیا جاتا ہے. میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیات میں بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی خدمت خلق کے حوالے سے بہت سارے دلائل, بہت سارے نصوص موجود ہیں, اور اس میں داخل چونکہ نہیں ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو, رکوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور خیر کا کام کرو. وافعلوا الخیر, بھلائی کا کام کرو, خیر کا کام کرو. مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وافعلوا الخیر کہا گیا کہ خیر کا کام انجام دو, اس کے اندر تمام خیر شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق, اللہ کے نبی علیہ السلام کے حقوق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حقوق, اس کی کتاب کے حقوق, اور پھر اس کے بعد بندگان الہی کے حقوق, مخلوق کے حقوق, ہر اعتبار سے جو خیر ہے وہ وفعل الخیر کے اندر شامل ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہیں جن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس سلسلے کی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک مشہور جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے
कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे से दुनिया की किसी मुसीबत को टालेगा या उसके टालने में हिस्सादार बनेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत की मुसीबतों में से किसी मुसीबत को टाल देगा। ये आम बात है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में होता है। ऐसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अतइमुल जानी व फुक्कुल आनी वगैरह, यानी क्या मतलब, भूखे को खाना खिलाओ, जो कैद में हैं उनको छुड़ाओ। ये मतलब एक इशारा है खिदमत खल्क के हवाले से। अल्लाह के नबी अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी की हदीसों में दावत इल्लाह की जो बात है वो बहुत ही ज्यादा मारूफ है, बहुत ही मशहूर है। और अल्लाह के कलाम की आयात में, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में दावत की जो असास है, दावत की जो बुनियाद है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत है। और वो भी तौहीद इबादत की दावत है, तौहीद उलूहियत की दावत है, जिस सिलसिले में सबसे बड़ा झगड़ा मेरे भाइयों इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में और अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल जो भेजे गए थे उनके दरमियान जो सबसे बड़ा झगड़ा था, सबसे बड़ा टकराव था, इख्तिलाफ था, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तौहीद में इख्तिलाफ था। रुबूबियत का मसला बहुत आसान था। मुशरिकीन मक्का भी रुबूबियत का इकरार करते थे, खालिक को मालिक मुदब्बिर मुंतजिम तस्लीम करते थे, इसमें बड़ा मसला नहीं था मेरे भाइयों। और इसके इनकार करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन असल झगड़ा तौहीद इबादत का था। अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी खालिस हो इस रुए जमीन पर, इस आसमान की छत के नीचे, और अल्लाह तबारक व तआला की धरती के ऊपर इबादत अगर हो तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल की हो, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक मुदब्बिर व मुंतजिम है। ये सबसे बड़ा मसला था। इसीलिए अंबिया अलैहिस्सलाम की जब सीरत कुरान करीम की आयत में सिर्फ अगर आप पढ़कर देखना चाहें तो आपको इसी बात पर तरकीज मिलेगी, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। यही बात हजरत नूह ने, यही बात हजरत सालेह ने अपनी कौमों से, यही बात हजरत हूद ने अपनी कौम से, यही बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से। अलगरज तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का निचोड़ और बुनियाद क्या है? वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत है। शिर्क जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किया जाता था, उससे कौम को कैसे आजाद किया जाए, कैसे निकाला जाए, ये सबसे बुनियादी मसला था। तो दावत इल्लाह की जो बात आपके सामने कही जा रही है, दरअसल ये दावत इस तनाजुर में है कि जमात अहले हदीस की दावत का असल महवर क्या है, जमात अहले हदीस की दावत का मिशन का सबसे बुनियादी हिस्सा क्या है। इस तनाजुर में आप समझें तो ऐसे तो तमाम फराइज की दावत, तमाम मुस्तहब्बात की, सुनन की और शरीयत इस्लामिया के एक एक गोशे की दावत इल्लाह के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुनियादी मसला है, असलुल उसूल जो है, जो सारी दावतों की असास है और जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया में अमन व अमान की जमानत है, जिसके नतीजे में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत, मगफिरत और अल्लाह तबारक व तआला की रिजवान का वादा है। और इस तौहीद में खलल होने के नतीजे में दुनिया की सारी नेकियां, हत्ता की रुबूबियत की तौहीद पाई भी जाए, हत्ता की अस्मा सिफात की तौहीद पाई भी जाए और सारे फराइज और पूरी शरीयत इस्लामिया पर अमल हो रहा हो, लेकिन इस तौहीद इबादत में खलल के नतीजे में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जन्नत नहीं मिल सकती। वो हमेशा हमेश के लिए अगर तौबा किए बगैर मर गया तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। इस हवाले से वो सारी आयतें अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद हैं, उन सारी तफसीलात से भी सरफे नजर करना है, क्योंकि असल जो नुक्ता आपके सामने पेश करना है वो ये है कि ये जो दो पहलू हैं, दावत इल्लाह का पहलू जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत, और इसकी जिद यानी शिर्क बिल्लाह से उम्मत को आजाद करना और उसकी मजम्मत बयान करना, और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला की नजर में क्या देखा गया है, अल्लाह के कलाम की आयतों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, सारी बातें हमें बुनियादी तौर पर ये आपके सामने पेश करनी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जाहिर की नेकी के एतबार से, खैर के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से, ये दूसरा पहलू खिदमत खल्क वाला भी शरीयत इस्लामिया के अंदर बयान किया गया, उसकी फजीलत बयान की गई, उस पर बहुत सारे अजर व सवाब का वादा भी किया गया। तो अब मसला यह है कि दोनों खैर है,
اللہ तबारक व तआला की दीन की दावत, अल्लाह की तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत और बिदात, खुराफात, हवाए नफ्स मेरे भाइयों, और जितने भी तुर्क हैं, जितने भी रास्ते हैं सुन्नत से हटे हुए, उन तमाम रास्तों से उम्मत को आगाह करने का जो मिशन है, ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है और ये बहुत बुनियादी काम है। अब हमारी और आपकी जो जिंदगी है, हमारा और आपका जो मुल्क है, वतन है, या वतन अजीज से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया के गोशे गोशे में, मुख्तलिफ खित्तों में जो दावत इल्लाह के और खिदमत खल्क के सिलसिले में जो बेएतदाली पाई जाती है, जो इसके अंदर इफरात तफरीद का सिलसिला चलता है, इस हवाले से सलफ का मनहज क्या है? मेरे भाइयों, क्या आप नहीं देखते कि कितने हमारे भाई हैं जो बहुत ज्यादा हौसलामंद होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं उन मसाइल में जो मसाइल खिदमत खल्क से ताल्लुक रखते हैं। अभी कोरोना के हालात 2-3 साल पहले गुजरे हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि कोई तबका ऐसा नहीं था इंसानों का, रंग और नस्ल और मजहब और मिल्लत और कौम की तफरीक से आजाद होकर के, जिसने खिदमत खल्क में हिस्सा न लिया हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके खिदमत खल्क में हिस्सा लिया और जमात अहले हदीस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। मेरे भाइयों, कोई भी जमात रही हो, कोई भी खित्ता रहा हो, किसी भी इलाके की यूनिट रही हो, कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी जमात ने, ये हमने आपने देखा है। लेकिन मसला ये है समझने का कि आखिर इन दोनों में पहल किसमें करना है, इन दोनों में अव्वलियत किसकी है? असल काम दोनों फजीलत का काम है, लेकिन फजीलत में बरतरी किसको हासिल है? अहमियत के एतबार से और अंजामे कार के एतबार से क्या ज्यादा औला है, क्या बड़ा मिशन है, और किसका दर्जा सानवी है, किसका दर्जा या किसकी हैसियत दूसरी है? मेरे भाइयों, ये असल में बुनियादी नुक्ता है जिसके सिलसिले में मुझे आपके सामने चंद बातें करनी है। तो असल में मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत अगर उस शख्स को न दी गई या उन लोगों को न दी गई जो अल्लाह की तौहीद के से भी महरूम हैं, जिनके अकीदे में शिर्क है, जो कब्रों मजारों पर जाने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत के अंदर न जाने कितनी गैरुल्लाह को, मेरे भाइयों, जानदारों को, बेजारों को शरीक करने वाले हैं, ये लोग अकीदे और ईमान, सही अकीदे और ईमान से महरूम हैं और इसके भूखे हैं। और यही लोग पेट के भी भूखे हैं, इनके पेट में ग़िज़ा और खाने की भी जरूरत है, इन्हें पानी की भी जरूरत है, इनके जिस्मों पर सही कपड़े नहीं है, इन्हें कपड़ों की भी जरूरत है, इनके सरों के ऊपर छत नहीं है, इन्हें घर की भी जरूरत है। यकीनन दोनों तरह की जरूरतें हैं, दोनों तरह की भूख है। हमारा काम, जमात अहले हदीस का काम, और अभी आपने खिताब सुना है मेरे भाइयों, शेख अब्दुल वहाब साहब हाफिज़हुल्लाह ने ये बात बार बार कही कि सारी आजमाइशें, सारी मुसीबतें, सारी कुर्बानियां जो हमारे उलमा ने दी, वो जुर्म ये था कि वो तौहीद के दाई थे, जुर्म ये था कि वो मेरे भाइयों सुन्नत के दाई थे। उनका जुर्म ये था कैदो बंद की सजाएं, मेरे भाइयों कोड़ों की मार और जला वतन किया जाना, मार डाला जाना, जला दिया जाना, इस तरह की जितनी सजाएं आपको मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक ही जुर्म है मेरे भाइयों, वो ये है कि हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने हमेशा तौहीद के मिशन को बुलंद रखा, उसके झंडे को ऊंचा रखने के लिए हर तरह की मशक्कत बर्दाश्त की, हर तरह की कुर्बानियां बर्दाश्त की, जान चली जाए बर्दाश्त है, माल छीन लिया जाए बर्दाश्त है, इज्जत व आबरू के साथ तलाउब कर लिया जाए बर्दाश्त है, हर तरह की अजियत दे दी जाए बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह की तौहीद की दावत के सिलसिले में कोई समझौता नहीं। शिर्क की मजम्मत ज़बान से भी, कलम से भी, हर एतबार से मेरे भाइयों जिहाद किया। और ऐसे ही सुन्नत की दावत, सुन्नत के खिलाफ हवाए नफ्स है, ख्वाहिशात नफ्सानी, बिदात, मुहदसात और अक्ल परस्तियां, और मेरे भाइयों शरीयत और सुन्नत के उसूलों से आजाद होकर के मनमानी बातें करने वाले लोग, इसके खिलाफ भी मेरे भाइयों अलम जिहाद बुलंद करने वाले हमारे ये उलमाए अहले हदीस थे। मेरे भाइयों पूरी तारीख को अपने सामने रखें, ये तो इस तनाजुर में कि हम अपने मुल्क वतन की तारीख में
मुल्क वतन में तारीख अहले हदीस की बात कर रहे थे, इसलिए ये इशारा आपके सामने किया जा रहा है, ये हाला आपके सामने किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये फैसला कौन करेगा कि हम एक गरीब शख्स का पेट भरे, उसे खिलाए पिलाए, ये पहले जरूरी है, उसे कपड़ा पहनाए, ये पहले जरूरी है, यानी खिदमत खल्क करने पर तवज्जो दें, ये पहले जरूरी है, या वो जो अकीदा और ईमान का भूखा है, जो सुन्नत का भूखा है, पहले उसको पहले उसे तौहीद की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे सुन्नत की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे शिर्क से आजाद किया जाए, पहले उसे बिदात और हवाए नफ्स से आजाद किया जाए। पहले क्या जरूरी है मेरे भाइयों, क्या करें? इस हवाले से मैं चंद हवाले भी आपके सामने पेश करूंगा, आपको गौर करने की जरूरत है। फिर ये पहलू भी सामने रखें कि ये काम जो खिदमत खल्क का काम है, ये काम करने वाले, इस मिशन को बहुत ज्यादा जज्बात के साथ आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? इसमें समाज का, मिल्लत का, कौम का, वतन का कौन कौन सा तबका लगा हुआ है? और आपके इस तौहीद की दावत के मिशन में कौन है? सुन्नत की दावत के मिशन में कौन है? और उम्मत को शिर्क की आलाइशों से बाहर निकालने और बिदात के, खुराफात के दलदल से निकालने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? ये पहलू भी समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस हवाले से बहुत कुछ बेतदाली देखने में आती है और आपको ये सादत और शरफ हासिल है, जमात अहले हदीस को ये सादत हासिल है कि जमात अहले हदीस वाहिद जमात है मेरे भाइयों, जो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां जहां वो है, चाहे बड़ी तादाद में हो, छोटी तादाद में हो, चंद अफराद हो, एक फर्द हो, अपने दिल में जो दर्द लेकर के जिंदगी गुजारता है, वो दर्द है उम्मत को शिर्क से आजाद करने का, वो दर्द है उम्मत को खालिस तौहीद पहुंचाने का, वो दर्द है उम्मत को सुन्नत की खालिस दावत देने का, वो दर्द है उम्मत को बिदात से, खुराफात से और वो रास्ता जो लोगों ने नबी की सुन्नत से, सहाबे किराम की सुन्नत से हट करके अपनी मनमानी सुन्नत के रास्तों के खिलाफ बना रखे हैं, उन रास्तों से आजाद करने का जज्बा हर फर्द जमात अहले हदीस का दुनिया के गोशे गोशे में लेकर के चलता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ऐसी सूरत हाल में क्या इनका कोई साथी है? क्या इस मिशन में इनका कोई हामी है? आप अगर ये जान रहे हैं तारीख के हवाले से कि हमें, हमारे उलमा को, हमारे असलाफ को और तारीख के हर दौर में इसलिए सजाएं दी गई, सऊबतों का सामना करना पड़ा कि वो तौहीद के दाई थे, वो सुन्नत के दाई थे, वो शिर्क के खिलाफ थे, वो बिदात के खिलाफ थे और वो बातिल मनाहिज और रास्तों के खिलाफ थे। इसलिए उनको अगर सजा देने वाले सजा दे रहे हैं तो भला वो इस मिशन में साथ कैसे दे सकते हैं? जो सजा देने के दर पे हो, हमारे उलमा की जान लेने के दर पर हो, कैदो बंद की सजाएं देने के लिए कोई भी दकीका छोड़ने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो, भला वो हमारी तौहीद के मिशन के साथी कैसे हो सकते? अगर वो तौहीद के मिशन में हमारे साथी होते तो भला ये कैदो बंद की सजाओं की नौबत क्यों आती? जेल की नौबत क्यों आती? जानो माल की तबाही की नौबत क्यों आती? मेरे भाइयों, मसला वाज़ेह है, मसला वाज़ेह है कि आपके इस मिशन में आपका कोई साथी नहीं है, आप मुनफरिद है इस मिशन के अंदर। और याद रखना, जमात अहले हदीस के जियालो, हम अपने बड़ों के बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं, याद रखें कि सादत को, इस शरफ को अपनी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होने देना। दूसरा पहलू समझो, खिदमत खल्क करने वाले कितने लोग हैं? अभी कोरोना के हालात में सबके सामने, आंखों के सामने सारा मंजर था मेरे भाइयों, लोगों के पेट भरने वाले, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने और उसके अलावा घर के अखराजात, किराया, भाड़ा, तालीम, तरबियत, इन सारे अखराजात की जिम्मेदारी के लिए हर तबका आगे था। मुसलमान भी काम कर रहा था, मुसलमानों के सारे तबके काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों के सारे तबके काम कर रहे थे, सियासी लोग काम कर रहे थे, सोशल लोग काम कर रहे थे, नेता लोग काम कर रहे थे, हुकूमत के इदारे काम कर रहे थे। तो खिदमत खल्क करने वाले तो दुनिया के हर तबके के लोग हैं, जिससे ये पेट भरेगा, इंसान की जिस्म की जिंदगी बाकी रहेगी, इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, लेकिन वो ग़िज़ा कौन फराहम कर रहा था?
میرے بھائیوں جس غذا کی فراہمی سے انسان پیٹ نہ بھرے مر جائے گا لیکن جہنم میں نہیں جائے گا میرے بھائیوں، لیکن اگر توحید کی غذا نہ ملے، سنت کی غذا نہ ملے، شرک سے اس کو پاک نہ کیا جائے، بدعات سے، باطل مناہج سے اسے آزاد نہ کیا جائے تو وہ عذاب جہنم کا مستحق بن سکتا ہے۔ اور اگر شرک کے ساتھ دنیا سے گیا یا عقیدے کی بدعات کے ساتھ دنیا سے گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ کیا دعوت اللہ کا مشن پہلے ہے یا خدمت خلق کا مشن پہلے ہے؟ سلف کا منہج کیا ہے؟ اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیتوں کو آپ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے پہلے توحید کی دعوت دیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اور جو فحاشی کا عمل اور جرم قوم میں چلتا تھا اس سے بعد میں روکا۔ میرے بھائیو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی، شرک سے آزاد کرنے کا کام کیا۔ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈانڈیاں مارتی تھی، کاروبار میں خیانت کرتی تھی، اس جرم سے جو کبیرہ ہے لیکن شرک سے کمتر ہے، توحید کے مقام کے سامنے اس کا درجہ کم ہے، یہ کام بعد میں، اس کی دعوت بعد میں منع کیا گیا، ناپ تول میں کمی نہ کرو بعد میں، لیکن پہلے کس سے روکا گیا؟ شرک سے روکا گیا۔ اللہ کے کلام کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور آپ نے ان کو کیا کہا؟ آپ لوگوں کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہونے والا ہے جو اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعوت کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ تم اس بات کی دعوت دو کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، شرک سے باز آ جائیں، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا، اس کے بعد زکات کی، اس کے بعد روزے کی اور دیگر چیزوں کی دعوت دینا، یہاں تک کہ سب سے پہلی دعوت کیا ہو؟ اِلَىٰ أَن يُوَحِّدُ اللَّهِ، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ یہ توحید عبادت ہے، عبادت ربوبیت نہیں ہے میرے بھائیوں، پہلے الوہیت ہے، ربوبیت اس کے بعد اسماء و صفات اس کے بعد۔ یاد رہے یہ ساری آیتیں اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں، اور موضوع چونکہ واقعی بہت لمبا ہے اس لیے ساری بات تو نہیں کر سکتے، آئیے میں اس کو ذرا اصولی طور پر 2-4 منٹ جو بچے ہیں میں اصولی طور پر آپ کے سامنے بیان کروں کہ آخر خدمت خلق پہلے ہے یا خدمت خلق کو ترجیح دینا ہے یا دعوت اللہ کے مشن کو سب سے پہلے لے کر کے چلنا ہے۔ اور دعوت اللہ میں اللہ کی توحید کی دعوت، الوہیت کی دعوت، شرک کے خلاف زبان و قلم سے جہاد، میرے بھائیوں سنت صحیحہ کی دعوت، بدعات اور محدثات اور ہوائے نفس کے خلاف زبان اور قلم سے جہاد، کون سا کام پہلے ہے؟ کیا ہے سلف صالحین کا منہج؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اجعلتم، غور سے اس آیت کریمہ کو سننا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہ سورہ توبہ کی دونوں آیتیں ہیں، آپ یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرماتا ہے، اے لوگو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، کھانے کھلانے پلانے کی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں، خدمت خلق کی بات چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور کیا کرنا؟ مسجد حرام کی عمارت، یعنی کیا مطلب؟ اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس کی نگرانی اور نگہبانی کرنا، کیا تم نے ان کاموں کو ویسے بنا لیا ہے جیسے ایمان لانے والے ہیں؟ تمہارا یہ کام کرنا کیا ویسے ہی ہے جیسے ایمان لانے والے ایمان لاتے ہیں؟ ایمان لانا اور تمہارا یہ کام کرنا، تم بلا شبہ مسجد حرام کی خدمت کرنے والے ہو، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہو، ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے خیمے اور ٹینٹ لگانے والے ہو، کنویں کھود کر کھجور ڈال کر میٹھا پانی پلانے کا انتظام کرنے والے ہو، سب کچھ تم کرتے ہو، لیکن کیا یہ کام فمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ ویسے ہو سکتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا؟ یعنی کیا خدمت خلق کرنے والا ویسے ہو سکتا ہے جیسے توحید کی دعوت دینے والا، توحید ایمان لانے والا،
आखिरत पर ईमान लाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी के लिए जिहाद करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये दोनों कभी अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। कहां ईमान वाला, कहां तौहीद की दावत, तौहीद का इकरार, तौहीद पर अमल, आखिरत पर ईमान की दावत, और कहां तुम ये हाजों को पानी पिलाने की नेकी और हरम शरीफ की खिदमत करने की नेकी को तुमने ईमान वालों के बराबर बनाने के लिए सोच लिया है। ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता। उसके बाद मजीद अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए, वजाहत के साथ जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान की तहफ्फुज के लिए, सलामती के लिए अल्लाह पर, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने वतन को छोड़ करके दूसरे वतन चले गए, हिजरत करके चले गए और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानों के जरिए से जिहाद किया, मालों के जरिए से जिहाद किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आज़मु दरजतन इंदल्लाह, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है। तो ये है मनहज सलफ, तौहीद की दावत, अहले हदीसों का मिशन और खिदमत खल्क, इन दोनों के बीच में मुआजना करके देख लो क्या है मनहज सलफ सालिहीन का। अल्लाह का कलाम कहता है तौहीद की दावत पहले है और खिदमत खल्क बाद में है। दोनों काम करने वाले जरूर नेकी का काम करते हैं, लेकिन दोनों का दर्जा एक नहीं हो सकता। अल्लाह की तौहीद, ईमान, अल्लाह की राह में हिजरत, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानो माल से जिहाद, इनका दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बड़ा है। उलाइका हुमुल फाइजून व उलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग हकीकत में कामयाब होने वाले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये तो बात लंबी है, मैं दो तीन खाली इशारा करना चाहता हूं। उम्मत के अइम्माए सलफ का मैं नाम लेना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, और ये तो चंद चीता नाम हैं। उम्मत के आलाम की फहरिस्त लंबी है, इनकी किताबों का मुताला करने से मालूम पड़ता है। मेरे भाइयों, इख्तिसार के साथ वो बात अर्ज करूं मैं, 1-2 मिनट बाकी बचे हैं टाइम के ऐलान के मुताबिक। इमाम अहमद इब्न हंबल बयान फरमाते हैं सबसे बड़ा काम अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है। सबसे बड़ा काम क्या है? अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है, अल्लाह की तौहीद की मारिफत हासिल करनी। अल्लाह की मारिफत, उसकी तौहीद का हक जानना सबसे पहला काम है और सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है? कितना? इतना जरूरी है जितना इंसान की जिंदगी के जीने के लिए, जिंदगी के लिए खाने पीने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके जीने के लिए जितना खाने की जरूरत नहीं है, जितना पीने की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की जरूरत है। कहते हैं खाने की जरूरत दिन में 1 बार 2 बार है, पीने की जरूरत दिन में 1 बार 2 बार है। इतने से इंसान जिंदा रहेगा, बल्कि 2 दिन 4 दिन भी ना खाए, हफ्ता अशरा भी ना खाए, चंद घूंट पानी पर भी इंसान की रूह चल सकती है, इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अल्लाह की तौहीद का इल्म, उसकी मारिफत और उसकी दावत इतनी जरूरी है जितनी इंसान की सांसों की जरूरत है। जितनी सांसें 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कितनी सांसें चलती हैं, उतनी जरूरत है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की, उतनी जरूरत है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की। क्योंकि खाना पीना न भी मिला तो मर जाएगा इंसान, और वैसे भी मरना है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हम हैं तो आज तुम हो तो कल हमारी बारी। मेरे भाई, मौत तो आनी है वैसे भी। ये जिस्मों की मौत आसान है, जिस्मों की मौत आम बात है, मौत तो आनी है, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वो मरने वाला तौहीद पर मरा, सुन्नत पर मरा, तो गरचे भूखों प्यास से मर गया, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देगा। लेकिन जिसको तौहीद की ग़िज़ा न मिली, जिसको दावत अल्लाह में तौहीद की दावत न मिली, सुन्नत की दावत न मिली, शिर्क और बिदात से और बातिल रास्तों से आजाद न किया गया, और वो पेट भर भर के मर गया, आसाइश की जिंदगी जीता हुआ मर गया, खिदमत खल्क की बोरियां लेकर के, खाने के अनाज की किट लेकर के, और मेरे भाइयों कपड़े का गट्ठा
पत्थर लेकर के, आसान छात लेकर के मर गया और तौहीद और सुन्नत से महरूम रहा तो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम अहले सुन्ना फरमाते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ जान जाएगी, जहन्नम का अजाब नहीं होगा। लेकिन तौहीद और सुन्नत की दावत ना मिली तो इंसान अजाब जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा। मेरे भाइयों, यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने, यही बात हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताबों के अंदर एक दो नहीं कई बार कही है, और काश उसका वक्त होता कि आपके सामने पढ़ा जाए तो वो मोतियां मेरे भाइयों ज्यादा हमारे दिलों को अपील करती। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ रूस अकलाम है, जैसा कि जिम्मेदारों ने बताया है कि आगे कोई मजल्ला गालिबन या कोई नंबर खास शाये होने वाला है जिसमें ये मौज़ूआत मकाले की शक्ल में भी शाये होंगे। अगर जिंदगी रही और अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तो हो सकता है कि दलाइल इकट्ठा करके आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। मेरे भाइयों, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये नुक्ता समझने की तौफीक अता फरमाए कि जमात अहले हदीस का मिशन क्या है। अब एक बात आखिरी जो कहनी है वो इख्तितामी बात है, वो ये है कि ये खिदमत खल्क का काम सारे लोग करते हैं, सारे लोग करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, नॉन मुस्लिम भी करते हैं, हुकूमत भी करती है, सोशल लोग भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बिला तफरीक करते हैं कि नहीं करते? लेकिन आपकी दावत तौहीद